میں انتہا کی حسین عورت تھی. میرا جسم بہت خوبصورت تھا. میں اس دنیا میں تنہا تھی، اس لیے میں نے ایک نوجوان لڑکے کو اپنے پاس نوکر رکھ لیا. وہ لڑکا تھا تو 16 سال کا، لیکن دکھنے میں وہ 22 سال کا جوان مرد دکھتا تھا. میں جب بھی اسے دیکھتی تو میرا دل مچلنے لگتا. میرا اس پر دل آ گیا. گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ میں اسے اپنا پرسنل کام بھی لینا چاہتی تھی، اس لیے میں اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی. میں جب بھی نہا کر باہر نکلتی تو گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی اس کے سامنے آ جاتی. وہ جب بھی مجھے اس حالت میں دیکھتا تو نظریں ہٹانا بھول جاتا. ایک رات میری قسمت چمک اٹھی. وہ میری طرف مائل ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، مالکن آپ جو مجھ سے چاہتی ہیں میں وہ کام کرنے کو تیار ہوں. یہ سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھی اور فوراً اسے پکڑ لیا اور اس کا چہرہ پکڑ کر اپنے دونوں کے درمیان. میرا نام تحریم ہے اور میں بہت ہی خوبصورت تھی. جو بھی مجھے دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا. میری خوبصورتی کے چرچے پورے خاندان میں تھے. ہمارا جٹ برادری سے تعلق تھا. میں انتہا کی گوری چٹی رنگت کی مالک تھی. جو بھی مرد مجھے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا. لیکن میری قسمت اچھی ثابت نہیں ہوئی. ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور خوبصورتی میں میرا کوئی مقابلہ نہیں تھا. جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی تو باہر کے سارے مرد سر سے لے کر پیر تک مجھے گور گور کر دیکھتے. میرے ماں باپ بھی اس بات سے پریشان تھے کہ گھر میں اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے. اس لیے انہوں نے میری شادی جلدی کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایک دن میں اپنے رشتہ داروں کی شادی پر گئی تو وہاں پر امی کی ایک کزن نے مجھے پسند کر لیا. وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا بھی جوان ہے اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کو سونے میں تول سکتے ہیں. بس آپ ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، ہم آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے. یہ سن کر میری ماں خوش ہو گئی اور اس نے ہاں کر دی. 19 سال کی عمر میں ہی میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے بڑے سے بنگلے میں آ گئی. میرا شوہر بھی بہت خوبصورت اور نوجوان تھا. ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے تو ہر کوئی ہمیں دیکھتا ہی رہ جاتا کہ اتنا خوبصورت جوڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا. بہت سارے رشتہ دار ہمیں دیکھ کر جیلس بھی ہوتے تھے اور ہمیں نظر بھی لگاتے تھے. مجھے یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی کہ خدا نے ہمارے حصے میں بہت خوشیاں لکھی ہیں. لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. ابھی میری شادی کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. میرے شوہر کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی اور وہ اسی آگ میں پھنس گئے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ لقمہ اجل بن گئے. میں بڑی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی. ابھی تو میرے ارمان بھی پورے نہیں ہوئے تھے. میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی. شوہر کی وفات کے بعد مجھ پر ایک انکشاف ہوا. میرے شوہر کا وکیل میرے پاس آیا اور کہنے لگا، چونکہ آپ کے شوہر ایک انتہائی امیر انسان تھے اس لیے انہوں نے یہ بنگلہ آپ کے نام شادی کے بعد ہی کروا دیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کو بتایا نہیں تھا. وہ آپ کو اسی ہفتے سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے. اس لیے میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس نہیں گئی اور اسی بنگلے میں رہنے کا فیصلہ کر لیا. میری ساس کو میرے شوہر نے پہلے ہی دوسرا گھر دلا دیا تھا، اس لیے میں اس گھر کی اکیلی مالکن تھی. میرے شوہر کی وفات کے بعد میرے شوہر کا کاروبار ان کے بھائیوں نے سنبھال لیا اور ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں ایک معقول رقم ٹرانسفر کرتے رہے. میں شروع سے ہی بہت ناز نخروں سے پلی بڑی تھی، اس لیے مجھے کام کرنے کی کوئی عادت نہیں تھی. ہر وقت نوکر چا کر میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے. فی الحال یہ بنگلہ بالکل خالی پڑا تھا اور مجھے نوکر کی سخت ضرورت تھی، لیکن کسی پر بھی میرے لیے اعتبار کرنا انتہائی مشکل تھا کیونکہ میں اکیلی رہتی تھی اور میں تھی بھی انتہا کی خوبصورت. پھر ایک دن میری دوست آ کر مجھ سے کہنے لگی، تم اکیلی گھر پر رہتی ہو، تم کوئی نوکر کیوں نہیں رکھ لیتی؟ میں نے اس سے پوچھا کہ اعتبار والا کوئی بھی نوکر آج کل نہیں ملتا. تو وہ مجھ سے کہنے لگی، میرے پاس ایک نوکرانی ہے، اس کا چھوٹا بھائی بالکل فری ہوتا ہے اور کبھی کبھار ہمارے گھر بھی آتا ہے. تم اسے اپنے پاس نوکر رکھ لو، وہ تمہارے گھر کے سارے کام کر دے گا اور تمہارا بہت خیال بھی رکھے گا. میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کام کاج کرنے آتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں اس کو سارے کام آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کل صبح اسے میرے گھر بھیج دینا. کل صبح جب وہ لڑکا آیا تو اسے دیکھ کر میں چونک گئی. وہ 16 سال کا لڑکا تھا جو بہت ہی جوان اور خوبصورت دکھتا تھا. میری سہیلی نے اس لڑکے کو سب کچھ سمجھا کر بھیج دیا تھا. وہ لڑکا تھا بھی بہت اچھا، وہ بہت تیزی سے سارے کام نپٹا دیا کرتا تھا. میں نے اسے بنگلے کے ایک کوارٹر میں رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا. گھر میں صرف میں ہی رہتی تھی، اس لیے میں زیادہ نوکر نہیں رکھنا چاہتی تھی. اگلی صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنے نوکر کو آواز دی اور اس سے ناشتہ بنانے کو کہا، لیکن اس نے میرے حکم سے پہلے ہی ناشتہ تیار کر دیا تھا. میں نے اسے کمرے کے اندر ہی بلا لیا. میں ابھی تک نائٹی میں ہی تھی. میں نے اسے دیکھا اور اٹھ بیٹھی. وہ میرا ناشتہ پاس پڑے ٹیبل پر رکھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ میرے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہو. میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی. وہ تھا تو 16 سال کا، لیکن وہ جسمانی لحاظ سے کافی جوان دکھتا تھا اور وہ تھا بھی انتہائی خوبصورت. نہ جانے کیوں اچانک مجھے اس کی موجودگی میں گھبراہٹ سی ہونے لگی، کیونکہ اتنے بڑے بنگلے میں وہ میرے ساتھ اکیلا رہتا تھا اور تیسرا کوئی نہیں تھا.
कभी कभार मैं ऐसे लिबास में होती थी कि मेरी खूबसूरती देखकर किसी का भी ईमान डोल जाए। इसलिए मुझे ये सोचकर ही खौफ आने लगा कि मैं हूं भी जवान और मेरे हुस्न पर बहुत सारे लोग मरते थे। क्या पता ये नौकर भी कब बदल जाए। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया है, लेकिन मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि मैं खुद भी एक जवान लड़की हूँ और इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। मैंने नौकर को सारे दिन के काम बता दिए और वो अपने काम में मसरूफ हो गया, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब सा बोझ आ गया था। मुझे इस लड़के पर शक होने लगा था। मैंने सोचा कि मुझे मर्द की बजाय किसी औरत को नौकरी पर रख लेना चाहिए ताकि मैं महफूज भी रहूंगी। मुझे अपने घर से भी आए हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन पीछे से मेरा कोई भी फैमिली मेंबर मुझे मिलने नहीं आया था। उन्हें तो शायद मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। बाकी ससुराल वाले तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करते थे, वो मुझे मनहूस कहते थे। उनका कहना था कि मैं पहले उनका बेटा खा गई और बाद में उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो सब कुछ अपनी मर्जी से मेरे नाम करके गया था। खैर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं फीमेल मुलाजमा का कहाँ से इंतजाम करूं। फिर इत्तेफाक से मेरी एक दूर की कजन मेरे घर पर मुझे मिलने आ गई। मेरी ये कजन मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त थी। पहले तो हम काफी देर तक गपशप करते रहे। फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपने घर के कामकाज के लिए एक भरोसेमंद मुलाजमा को ढूंढ रही हूँ। मेरे नौकर को देखकर वो कहने लगी, ये लड़का अच्छा भला तो है और तेजी से काम भी कर रहा है, फिर तुम्हें मुलाजमा ढूंढने की जरूरत क्यों आन पड़ी। मैंने उसे अपने शुकूक व शुबाहत के बारे में बताया, जिस पर वो कहने लगी, तहरीन तुम भी क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो। खुद ही कह रही हो कि उसकी बहन तुम्हारी सहेली के घर में मुलाजमा है और वो इंतहाई वफादार भी है और उसका भाई भी बहुत अच्छा है, फिर भी तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो। मेरी मानो तो तुम नई मुलाजमों के झंझट में ना पड़ो। आजकल की मुलाजमाएं भी कुछ कम नहीं है, इंतहा की चुगलखोर होती हैं और चोरियां भी करती हैं। तुम इस घर में अकेली रहती हो, अगर कोई तुम्हारी चीज चुरा कर ले गई तो तुम क्या कर सकोगी। तुम वैसे ही अकेली रहती हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। अपनी कजन की बात सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस लड़के पर तो मुझे पहले ही बहुत भरोसा था, क्योंकि मैंने उसके अंदर इस तरह की कोई भी हरकत नहीं देखी थी। लेकिन नई मुलाजमा पर मैं कैसे भरोसा कर सकती थी। जाते जाते मेरी कजन मुझसे कहने लगी, अगर तुम्हारे दिल में इतने ही शुकूक शुबहात हैं तो तुम इस लड़के को आजमा लो, तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। कजन की बात सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया और उसका आइडिया मुझे बहुत ठीक लगा। मैंने सोच लिया कि मैं इस नौकर को आजमा लूंगी और अगर वो इस आजमाइश से पास हो जाता है तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी, क्योंकि जितनी मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, मेरा अब दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं था। मैं उसकी यादों के साथ ही अपनी बाकी की जिंदगी इस बंगले में गुजारना चाहती थी। इसलिए मैंने अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया और मेरे इस फैसले की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हो गए। वो मेरी शादी दोबारा कहीं और करना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था कि अब मैं शादी नहीं करूंगी। मैं जन्नत में भी अपने इसी शौहर के पास जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। अब मैंने अपने नौकर को आजमाने का फैसला कर लिया। मैंने तरह तरह से अपने नौकर को आजमाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि अपने नौकर को मुकम्मल एतबार में लाने के लिए मुझे उसे हर तरह की आजमाइश से गुजारना होगा। इसलिए शाम के वक्त मैंने जानबूझकर एक शॉपर में बहुत सारे पैसे डाले और शॉपर को दरवाजे के पास फेंक दिया और खुद मैं अपनी दोस्त के घर मिलने के लिए उसके पास चली गई। कुछ वक्त उसके घर गुजारने के बाद जब मैं घर वापस आई तो दाखिली दरवाजे के पास जो मैंने शॉपर गिराया था वो वहां पर मौजूद नहीं था और मेरा नौकर भी पूरे घर पर कहीं भी मौजूद नहीं था। मैं थोड़ी सी परेशान हो गई और मुझे ऐसे लगा जैसे वो पैसे लेकर भाग गया है। यही सोचते हुए मैं टीवी लॉन्च में जा बैठी, जबकि कुछ ही देर बाद दाखिली दरवाजे से नौकर अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में वही शॉपर था। उसने वो शॉपर लाकर मेरे सामने टेबल पर रखा और कहने लगा, मालकिन मुझे ये शॉपर दरवाजे के पास से मिला था, इसमें आपके पैसे थे, आप घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने इसे छुपा दिया। अब मैं इसे आपके सामने ले आया हूँ, आपकी अमानत आपके सामने मौजूद है। ये कहते ही वो वापस अपने क्वार्टर में चला गया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे नौकर की नीयत पैसों पर खराब नहीं है और उसे पैसों की कोई लालच नहीं है। मैंने वो सारे पैसे गिने, वो बिल्कुल पूरे थे। इसका मतलब ये कि उसे चोरी की भी आदत नहीं थी। अगर उसे चोरी की आदत होती तो वो उसमें से जरूर कुछ पैसे निकाल लेता, लेकिन उसने एक नोट भी नहीं निकाला था। मुझे ये सब देखकर खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे मुझे ख्याल आया कि अगर उसकी नीयत पैसों पर खराब नहीं है और ना ही उसे किसी चीज का लालच है, तो अब पीछे सिर्फ एक ही चीज बचती है और वो थी मेरी इज्जत। मैं अभी इंतहाई जवान थी और वो भी बालिग हो चुका था। ऐसे में हमारा एक साथ एक बंगले में रहना ठीक नहीं था। ये बात मैं भी जानती थी कि मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी और इसको रखना मेरी मजबूरी थी। अब मेरे जहन में एक ही ख्याल था कि अगर आजमाइश का ये आखिरी मरहला अगर मेरा नौकर पार कर गया तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। यही सोचकर मैंने पिंक रंग की नाइटी पहन ली
और खूब बनाव श्रृंगार किया। मैंने एक नजर अपने आप को शीशे में देखा तो मैं क़यामत जा रही थी। मेरी नजर अपने ही हुस्न पर नहीं टिक रही थी, तो भला मेरे हुस्न को देखकर मेरा नौकर कैसे ना पिघलता। मैं पूरी तरह तैयार होकर टीवी लॉन्च में जाकर बैठ गई। मैंने नौकर को आवाज दी और उसे कहा कि एलईडी पर कोई मूवी लगा दो। नौकर सर झुकाए हुए टीवी लॉन्च में आया और एलईडी ऑन की। उसने कोई ड्रामा लगा दिया, लेकिन मैंने फौरन उसके हाथ से रिमोट ले लिया और इंग्लिश चैनल लगा दिया, जहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक मूवी चल रही थी। मैंने नौकर को भी पास बैठने का हुक्म दिया। वो मेरे पास बैठ गया, लेकिन उसने सर झुका लिया। मैंने उसे कहा कि तुम भी मूवी देखो, हम दोनों पास बैठकर मूवी देखते हैं। वो एक नजर एलईडी की तरफ देखता और उसकी अगली नजर मुझ पर होती, और फिर फौरन उसने अपनी नजरें झुका ली। मुझे उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था। उसने एक दफा भी पूरी नजर भरकर मुझे नहीं देखा था। वो मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे अंदाज में दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ही बाइज्जत और शर्मो हया का पैकर हो। सच तो यही था कि मैं उसके किरदार से बहुत मुतासिर हो गई थी। मैंने उसको भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जरा भी ना भटका। मैं कुछ दिन और तक उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, इसलिए मैं हर रोज एक नए रंग की नाइटी पहनकर टीवी लॉन्च में जाकर बैठ जाती। एक दिन आधी रात का वक्त था। मैंने सुर्ख रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैंने नौकर को फोन किया और उसको बोला कि मेरे कमरे में आओ, मुझे एक आध जगह पर दर्द हो रहा है। वो फौरन भागता हुआ मेरे पास आया। जब वो कमरे में आया तो मैं सुर्ख नाइटी में बेड पर लेटी हुई थी। मैंने सोचा कि वो आज कुछ ना कुछ जरूर करेगा और उसके जब्त का पैमाना लबरेज हो जाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो सर झुकाकर खड़ा रहा और कहने लगा, मालकिन क्या मैं डॉक्टर को फोन कर दूं? मैंने नौकर से कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं मेडिसिन खा लेती हूँ। आधी रात का वक्त है, इस वक्त कोई भी डॉक्टर घर नहीं आएगा। मैंने उसे पास बुला लिया। वो मेरे पास आ गया, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई ही थी। उसके इस अंदाज ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। मैं जो इंतहा की खूबसूरत थी, कोई भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता था और हर कोई मुझे पाने की ख्वाहिश करता था। लेकिन मैं इस नौकर को आजमाने के लिए इस पर अपना पूरा हुस्न निछावर कर दिया था, पर उसने मुझे एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था। वो कैसे मेरी खूबसूरती से नजरें चुरा रहा था, ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। मैं उसकी शराफत और हया पर हैरान थी। आज मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं उसको नहीं आजमाऊंगी। वो इंतहाई बाकिरदार शख्स था, अब मुझे उस पर मुकम्मल एतबार था। लेकिन अचानक ही नौकर ने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरानो परेशान हो गई। वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गया। वो एकदम से उठा और कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी। वो दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, मालकिन मैं आपके पास काम नहीं करना चाहता। मैं एक इज्जतदार और शरीफ इंसान हूँ और मुझे अपने नफ्स पर काबू रखना आता है, लेकिन आपकी बेबाकी और लिबास मुझे मेरे ईमान से हटा रहे हैं। आज आपकी बेबाकी ने मुझे इंतहा का मजबूर कर दिया था। मैं भी बालिग हूँ और कुदरती तौर पर औरत की तरफ कशिश रखता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप पर कंट्रोल रखा है। अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं आपकी तरफ नजर उठाकर देखूं। तभी मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और अपने नफ्स को वहीं पर मार दिया। हम दोनों इस बंगले में तन्हा रहते हैं। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमारे दरमियान इस वक्त तीसरा शैतान भी मौजूद है जो हमें भटका सकता है। अब तक तो मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि मैं शैतान के हाथों उसका खिलौना बन जाऊं और जो वो मुझसे करवाना चाहता है वो सब कुछ ना कर बैठूं, जिसके बाद मैं आपसे नजरें भी ना मिला सकूं। वो अंधेरे में खड़ा रो रहा था और मैं उसके आंसू भी नहीं देख पा रही थी। मुझे ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो इंतहाई शराफत से अपने सारे काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसे बरगलाने पर लगी हुई थी। उसको आजमाने के पीछे न जाने मैं कौन कौन सी हरकत कर रही थी, और शायद इन हरकत की वजह ये थी कि मुझे भी शैतान ने भटका दिया था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। अगर किसी कमजोर लम्हे में वो अपने आप पर काबू ना रख पाता और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठता तो मैं उसे बदकिरदार समझ लेती और अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठती। गलती तो सारी मेरी ही थी। वो मुझसे कहने लगा कि वो अब मजीद यहाँ पर काम नहीं करेगा और वो वापस जाने की इजाजत मांगने लगा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। मैंने फौरन अपने आप को चादर में लपेटा और लाइट ऑन कर दी और उससे माफी मांगने लगी। मैंने उसे कहा कि मैं उसका इम्तिहान लेना चाह रही थी, लेकिन मैं खुद इस इम्तिहान में फेल हो गई। जिस पर मेरा नौकर कहने लगा, मालकिन आप बहुत ही खूबसूरत और अच्छी हैं, आप किसी को मुलाजिम रखने की बजाय शादी कर लें। मैंने उसे बताया कि मैं अब शादी नहीं कर सकती। मैंने कसम खाई है कि मैं अब अपनी बाकी की सारी जिंदगी अपने शोहर की याद में गुजारूंगी। जिस पर वो मुझसे कहने लगा, चलिए जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अब मैं ज्यादा अरसा आपके पास काम नहीं करूंगा। आप कोशिश करेंगे किसी और मुलाजमा की तलाश कर लें। उसने कुछ अरसा मेरे पास और काम किया। इतनी देर में मुझे एक और मुलाजमा मिल गई जो कि बहुत अच्छी थी। इसके बाद वो काम छोड़कर चला गया। आज भी जब भी मुझे उस नौकर की याद आती है तो मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी होती है। वो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान था जिसने मुझे बेलिबास देखकर भी मुझ पर हाथ नहीं डाला। एक बात मुझे समझ आ गई थी, कभी कभार हमारे आजमाने का तरीका दुरुस्त नहीं होता। किसी को आजमाते आजमाते हम इस इंतहा तक पहुंच जाते हैं कि जो कामयाब हम उसमें से तलाश करना चाहते हैं
وہ हमारे अपने अंदर पैदा हो जाती हैं और जितना अच्छा हम अपने आप को समझ रहे होते हैं वो असल में वही इतना अच्छा होता है जिसको हम आजमा रहे होते हैं।